Now, actually, in case of Mendelian genetics, genetics जो है basically it will be divided into different chapters. Okay, for example, when I will teach genetics, so actually it is much bigger than what is given in NCERT because I will teach genetics, not what is there in NCERT. So genetics and molecular biology. This is the basic heading. Okay. Now genetics and molecular biology ये basic heading है. So now technically it is divided into 3 topics. Okay. Yeah, we can divide into 3 topics. So first one is cytogenetics, और इसको हम लोग क्लासिकल जेनेटिक्स कहेंगे. Now in classical genetics, what are we doing? We will study all experiment, process, etc. Second topic is called molecular biology basically, and in molecular biology we will be actually discussing the expression of genes. Expression of genes. In cytogenetics we will read the concept that how factor became gene, and now in molecular biology we will discuss how gene produces expression. Okay, how gene produces expression. And जो last topic है that is called biotechnology. Okay, the last topic is biotechnology, in which we apply. This is actually called the application of genetics. ठीक है, तो ये कुछ आपका टॉपिक्स है. Now basically all these 3 topics are very important for KVPI. Okay, this is a very hot topic of KVPI. Now इसमें cytogenetics में क्लास 11th में आपका है सेल बायोलॉजी. Okay, you have cell biology and cell division. Here आपका क्लास 11th में है बायोमोलिक्यूल्स, जो अभी हम लोग का चल रहा है. Now we have entered into the expression aspect, जो DNA aspect. Okay, this is biomolecules and enzymes. Okay, biotechnology is not represented in class 12, class 11. Now in class 12 ये यहाँ आ जाएगा आपका Mendelian genetics. Means the genetics will be born. This is called Mendelian genetics. And उसके बाद deviations from Mendelism. Okay, deviations from Mendelism, Mendelian genetics, deviations from Mendelism, and यहाँ हम लोग chromosomal genetics भी discuss करेंगे. Okay, we will also discuss chromosomal genetics. But in molecular biology 12th में आपका है basically gene expression. जीन एक्सप्रेशन क्या है? सबसे फर्स्ट, why DNA is the genetic material. Second, DNA replication. Third, okay, DNA replication. Third is transcription, means how DNA becomes RNA. Fourth is genetic code, and fifth chapter is translation. Okay,
नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो क्लास 12 में आएगा, दैट इज योर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसमें आपका आ जाएगा क्या, ऑपेरॉन कंसेप्ट एटसेट्रा। इसमें वायरल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन को हम देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग देखेंगे अलग अलग टॉपिक्स, लॉट ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। फर्स्ट हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ओके, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके। उसी तरह से वी विल देन गो इनटू, रिकम्बिनेंट डीएनए आपका बन गया, उसके बाद हम उधर चले जाएंगे into your PCR, fingerprinting, okay, fingerprinting। तापरे basically introduction to biotechnology, introduction to biotech, and फिर उसका various applications। Okay, so this is what is the array of your biotechnology and molecular biology जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन 11th केवीपी क्लास हम लोग सुपरफिशियली करेंगे, बट इन 12th क्लास उसको हमें डिटेल में करना है। तो एक एक चीज उसका डिटेल में होगा, इधर हम लोग ऊपर ऊपर से चले जाएंगे, ठीक है। सो ना इसीलिए ये तो आपका जो 11th क्लास है, ये आपका 11th क्लासेस में ही चलता रहेगा। अभी हमारा बायोमोलिक्यूल्स चल रहा है, उसके बाद हम जाएंगे योर सेल, उसके बाद हम आएंगे एंजाइम्स, उसके बाद हम जाएंगे सेल डिवीजन। इस तरह से हम लोग एक बॉटनी जूलॉजी करेंगे, उसके बाद हम और किसी टॉपिक्स में जाएंगे। हियर वी विल स्टार्ट विथ मेंडेलियन जेनेटिक्स, ओके। सो इसीलिए जो इधर का जो हमारा टॉपिक है, वी विल बिगिन विथ मेंडेलियन जेनेटिक्स, बिकॉज मेंडल ने जो जेनेटिक्स को एक शेप दिया, सो दैट इज कॉल्ड मेंडेलियन जेनेटिक्स, ओके। पहले थोड़ा प्री मेंडेलियन पढ़ लेते हैं, ओके। प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है। तो हम लोग थोड़ा मेंडल के पहले की बातें करेंगे, अंडरस्टूड। Now, in pre-Mendelian genetics means before. I'm talking about from 0 day till Mendel, है कि नहीं? So from 0 day till Mendel आपका हम लोग डिस्कस करेंगे। Now उसमें आपके अलग अलग theories थे, fine? There are different types of theories, okay? सो इसीलिए जो इंट्रोडक्शन में हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, ओके। नाउ एक्सपीरियंस टेल्स अस, जनरली आप अगर आप देखोगे, एक्सपीरियंस टेल्स अस दैट लाइक begets like, that is living things tend to produce offsprings that resemble them, okay। What is true at the level of species holds true at the level below the species, races, varieties, breeds, except that resemblances increase। देखो ये हमने टैक्सोनॉमी में पढ़ा है, आप लोग तो स्कूल का क्लास कर नहीं रहे, इसलिए हम लोग काफी ज्यादा टैक्सोनॉमी पढ़ चुके हैं, उधर भी हम लोग निडारिया कंप्लीट कर लिए हैं। तो टैक्सोनॉमी में इधर क्या हो रहा है, जैसे आप नीचे आएंगे सिमिलैरिटीज बढ़ते जाएंगे, एंड जैसे आप ऊपर जाएंगे सिमिलैरिटीज घटते जाएंगे। तो एज यू गो डाउन, जैसे हम लोग किंगडम से जीनस, स्पीशीज, स्पीशीज के नीचे आएगा रेस, वैरायटी, ब्रीड एटसेट्रा। जैसे आप नीचे आएंगे सिमिलैरिटीज बढ़ती जाएंगी, एंड जैसे आप ऊपर जाएंगे सिमिलैरिटीज घटते जाएंगे। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमी। Children tend to resemble parents, even grandparents, and persons of earlier generations.
The similarities are obviously not due to coincidence, but due to inheritance or due to heredity. इसीलिए हम लोग जेनेटिक्स को क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी. Okay, so this is the basic concept of heredity. Now, in case of pre-Mendelian era, हमारे पास जो concepts था in pre-Mendelian era, अलग-अलग theories थे. Okay, so different types of theories. Fine. Now, about 6,000 years ago, men kept records of pedigrees of domestic animals such as horses and food plants such as rice. क्योंकि एग्रीकल्चर बिगिन कर चुका था, हम लोग पेडिग्री एंड सब कुछ डाटा रखते थे so that क्रॉस वॉस करने में मदद आएगा. The idea that हाँ बोलो. पेडिग्री का मतलब? पेडिग्री का मतलब वंशज. वंश मीन्स आपका डिटेल, जैसे तुम्हारे दादा कौन है, परदादा कौन है, मामा कौन है, मौसी कौन है, पीसा कौन है, फूफा कौन है, कौन तुम्हारा भाई है, कौन किस तरीके का भाई है. जैसे तुम बोलते हो फुप्पड़, कुक्कड़, पीसा, मौसा, भणोजा, भाई. ये जो आप रिलेशंस डेवलप करा रहे हो ना, इसको मेंटेन करना पेडिग्री कहलाता है. ओके, मीन्स आपके वजह से मैं सपोज आई टेल यू व्हाई आर यू, मतलब जैसे कोई लड़का लड़की जा रहे हैं तो हम जब पूछेंगे तो तुम क्या बोलते हो? मेरा कजिन है. तो कजिन किस साइड से है भैया, तो उसको डिफाइन करो, तो दैट इज पेडिग्री, है कि नहीं? तो लाइक दैट, सर ये मेरे मौसी के मौसा का बेटा का भांजा का बेटी का बहन का बेटा है, तो समझे कि नहीं? ये जो रिलेशन, इसको हम लोग पेडिग्री बोलते हैं. तो जो घोड़े हम रखते थे, मैं किधर से खरीद के लाया, वो किधर से खरीद के लाया था, उसका बाप कौन है, ये पूरा ट्रैक रखते थे. तो इस क्योंकि एग्रीकल्चर में आप देखोगे, अगर आप क्लोज वेराइटीज को आप पेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कम होता है. समझ रहे हो? तो दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन. तो इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में उनको पता था कि जब हम लोग आपस में ही गाय बैल को क्रॉस कर रहे हैं इन द सेम फैमिली फॉर एजेस, धीरे धीरे बच्चों का क्वालिटी खराब होता जाता है. इसीलिए in order to maintain good strains, so we have to maintain records. Okay, that record is called pedigree. So ideas of that period to explain the phenomena can be categorized under following heads: vapor fluid theory, pre-formation theory and particulate theories. ये तीन अलग अलग प्रकार के थियोरीज हैं. ओके, माने हाउ द इनहेरिटेंस अकर्स. ओके, तो इसको हम तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटे हैं. तो वेपर फ्लूइड थ्योरीज जो है वो आपके बेसिकली हिस्टोरियंस जो हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो, उस जमाने के थ्योरीज हैं. एंड वो क्या कहता है? ओके, पाइथागोरस प्रपोज दैट every organ of the human being gives out some vapors. These vapors form a new individual. समझ रहे हो कि नहीं? उसी तरह Hippocrates believed that the reproductive material is handed over from all parts. माने आपका हाथ का रिप्रोडक्टिव पार्ट हाथ देता है, हेड का रिप्रोडक्टिव पार्ट हेड देता है, लेग का रिप्रोडक्टिव पार्ट लेग देता है. ओके, सो दैट द कैरेक्टर्स आर डायरेक्टली हैंडेड ओवर टू द प्रोजेक्ट, है कि नहीं? तो इसलिए द रिप्रोडक्टिव मटेरियल इज हैंडेड ओवर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो दैट कैरेक्टर्स आर डायरेक्टली हैंडेड ओवर टू द प्रोजेक्ट. तो सारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कलेक्ट होंगे एंड वो हम बच्चे को दे देंगे. Aristotle thought that semen of man has some vitalizing effect
and he considered it as the highly purified blood. According to him, mother provides inert matter and father gives motion to the new life. तो समझ रहे हो? तो ये इनर्ट मैटर एंड मोशन के मिलने से आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है? बच्चा. So this is which theory? This is your Weber's theory. प्री-फॉर्मेशन थ्योरी क्या कहता है कि जो एम्ब्रियो है या जो बच्चा है वो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करता है, वो माँ के बॉडी में ग्रो करके आता है. जैसे आपको याद है कि नहीं, वो जो चाइनीज टॉयज होते हैं छोटे छोटे से ड्रैगन्स एंड बॉल्स, तो उसको जब आप पानी में डालते हो तो वो बड़े हो जाते हैं. रिमेम्बर? Yes, sir. वही तो इसलिए लियोनार्डो डा विंसी proposed a theory that the male and female parents contribute equally to the heredity of the offspring. ओके, तो उन्होंने बोला कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, ओके, टू द हेरिडिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग. वरना पहले जमाने में क्या था, लोग थोड़ा माने दे वर नॉट गिविंग ड्यू रिगार्ड्स टू लेडीज, है कि नहीं? तो वो हमारे शोविनिस्ट थे. पर लियोनार्डो डा विंसी ने बोला ना. तो देख रहे हो एरिस्टोटल क्या बोल रहे हैं, मेल का सीमेन वाइटलाइजिंग इफेक्ट देता है, बट लियोनार्डो बोले ना दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है. ठीक है. नाउ उसमें एक कंसेप्ट है होमनक्यूलस का. ओके, होमनक्यूलस का मतलब क्या है? प्री फॉर्म्ड मैन, है कि नहीं? जो प्री फॉर्म्ड मैन है वो है होमनक्यूलस. तो इसीलिए उसके बाद आपका एक साइंटिस्ट है विलियम हार्वे. तो हार्वे जो है he was one of the persons who discussed blood circulation. Okay, so William Harvey speculated that all animals arise from eggs and the semen only plays a vitalizing role. तो इसीलिए ये फीमेल को फेवरिंग थियोरी था. ओके, उसी तरह रेग्नियर डिग्राफ. डू यू नो रेग्नियर डिग्राफ? बोलो, आपने इनका नाम सुना हुआ है रेग्नियर डिग्राफ का? सो देख रहे हो, पढ़ाई ऐसे करना चाहिए कि आपका कुछ यूज हो पाए. अब देखो, सब पढ़ लिए, इतना हायर फायर 9-10 में पढ़ लिए, बट आप एसोसिएट ही नहीं कर पा रहे हो. जो ग्राफियन फॉलिकल है, वो ग्राफियन फॉलिकल मालूम है क्या है? यस सर. तो ग्राफियन फॉलिकल किसके नाम पे रखा गया है? रेग्नियर डिग्राफ. ओके, तो ऑब्जर्व दैट progeny would have characteristics of father as well as mother, and therefore he proposed that both parents should contribute to the heredity. ओके, तो उन्होंने बोला कि दोनों को देना चाहिए. Malpighi, he was a very famous histologist, the pioneer of the pre-formist school, concluded that development of any organism, okay, consisted simply of growth of preformed parts. मतलब वो बच्चा ऑलरेडी होता है, बस वो आगे आके ग्रो करता है. Jan Swammerdam studied development of insects and frog and suggested that development of an organism is a simple enlargement of a minute but preformed individual. Okay, तो ये सब बिलीव करते थे कि एक प्रीफॉर्म्ड इंडिविजुअल होता है जो बस बड़ा होता है. इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्री फॉर्मेशन थियोरी. Sorry, that is called pre. I will show you the photograph also. तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली क्या कहने वाले. Now there was a man called Hartsocker. तो हार्टसोकर ने क्या कहा
द स्ट्रक्चर ऑफ होमनक्यूलस, होमनक्यूलस क्या है, वही, ओके। द स्ट्रक्चर ऑफ होमनक्यूलस मतलब द मिनिएचर मैन इन द स्पर्म हेड was published in 1965 by Hartsocker and Dellen Patius। समझे कि नहीं? तो उन्होंने एक चित्र बनाया कि उसमें एक बेबी इंसान था स्पर्म के अंदर। तो आई विल टेक अ शॉट, आई विल शेयर अ स्क्रीन सो दैट आई कैन सेंड यू द डायग्राम। तो देख रहे हो, तो दिस इज द डायग्राम। इसमें आप क्या देख रहे हैं? Fine. So here you are seeing fine, इधर आप क्या देख रहे हो? This is the sperm, देख रहे हो कि नहीं? ये स्पर्म के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है एंड वो माँ के बॉडी में जाके बड़ा होता है। प्लस कुछ लोगों ने तो स्पर्म को इस तरह से भी बनाया। तो these are all different types of sperms drawn by Hartsocker। ओके उसके बाद ये जो है थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस है, दिस वन। तो उन्होंने एक्चुअली व्हाट योर डार्विन, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस वाज टोल्ड बाय डार्विन। उन्होंने बोला बॉडी का हर पार्ट ओके कुछ ना कुछ देता है एंड दैट इज कॉल्ड गेम्यूल्स। एंड ये जो गेम्यूल्स है वो अल्टीमेटली मिलने के बाद एक ऑर्गेनिज्म बनता है। सो दिस इज दैट थ्योरी, ओके। So इसलिए just to show you that photograph, okay, so now you understood what is a homunculus। तो इसीलिए वो जो स्पर्म के अंदर yes, तो कुछ लोग सोचते थे कि वो स्पर्म के अंदर होता है तो उनको हम लोग एनिमल क्यूलिस्ट्स बोलते थे, एंड कुछ लोग सोचते थे कि वो एग के अंदर होता है, उनको ओविस्ट्स कहा जाता था। ओके सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए इट डिपेंडेड अपॉन द ओके people। So all such theories which advance the concept of the presence of a preformed embryo in the sex cells are known as preformation theories। Scientists of this school are divided into two categories: ovists, okay, ovists, okay। तो ओविस्ट किसको कहते थे? They attached more importance to ova। They thought the homunculus was present in ova। उसी तरह animal culist okay they gave more importance to sperm। They gave more importance to sperm and believe that the homunculus was present in the sperms। It got nourishing fluid। It got nourishing fluid from the mother। समझ रहे हो? तो ये सब आपके थ्योरीज हैं, इनको क्या कहते हैं? प्री फॉर्मेशन थ्योरीज। क्लियर? तो इनको हम प्री फॉर्मेशन थ्योरीज कहेंगे। उसके बाद हाँ बोलो। एनिमल क्यूलस का तो समझ में आया कि वो कि उसमें फीमेल का रोल है कि वो नरिशमेंट देती है, तो ओविस में मेल का क्या रोल? वो वाइटलाइजिंग फ्लूइड देता है, वो भी तो हमने डिस्कस किया ना कि वो उनको वाइटलाइजिंग फ्लूइड देता है। वाइटलाइजिंग मतलब जो उसे जिंदगी दे, अंडरस्टूड? तो जो उसे जिंदगी दे वो सब देता है, ओके। बट दोनों का कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने ये कहा कि दोनों का कंट्रीब्यूशन है, दोनों पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है। बट जो फेमिनिस्ट थे
उन्होंने बोला कि भाई होमनक्यूलस एग में होता है, एंड जो शॉविनिस्ट थे उन्होंने बोला वो स्पर्म में होता है. बाकी कंसेप्ट इज सेम. नाउ वॉल्फ, KW वॉल्फ, अगेन इनके नाम से रखा गया है वॉल्फियन डक्ट, जो मेल डक्ट सिस्टम होता है. समझ रहे हो? मेल में जो पेनिस में होता है दैट इज कॉल्ड वॉल्फियन डक्ट. बादा मान की तो है नहीं सही, जो ब्लू डवर है. तो अल्टीमेटली वॉल्फ ने ये सब बकवास को बंद किया. He finally refuted the pre-formation theory by proposing that neither egg nor sperm has a structure like homunculus, but the gametes contained undifferentiated living substances capable of formation of the organs. है कि नहीं? तो उन्होंने वो बच्चे वाला कंसेप्ट को टोटली रिजेक्ट कर दिया. क्लियर? So that is how pre-formation theory was rejected. Now हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो नेक्स्ट थियोरी. So नेक्स्ट थियोरी हमारा क्या है? पार्टिकुलेट थियोरीज. समझे? तो इसलिए ये सब जो थियोरीज है ये आपका एक आइडिया देता है कि पहले लोग क्या सोचते थे, एंड फिर आपको मेंडल को इज्जत करना आएगा. ओके, सी मेंडल वाज ए गुड मैथमेटिशियन, तो इसलिए वो ऐसे बकवास चीजों में विश्वास नहीं करते. ओके, नाउ पार्टिकुलेट थियरीज जो है उसमें फ्रेंच बायोलॉजिस्ट नॉपर्टियस, उन्होंने क्या कहा? He has proposed that the body of each parent gives rise to minute particles. He was the first to propose the concept of biparental inheritance by elementary particles. ठीक है? उसको सपोर्ट किया लमार्क ने. तो लमार्क proposed the phenomena of inheritance of acquired characters. है कि नहीं? तो लमार्क ने क्या कहा कि जो भी कैरेक्टर एक बच्चा, एक ऑर्गेनिज्म अपने जिंदगी में एक्वायर करता है वो ऑनेस्टली उसे अपने बच्चों को दे देता है. अंडरस्टैंड? नाउ फॉर एग्जांपल, अभी अगर सत्य सार्थक बॉडी शॉडी बना ले, ना, सत्य सार्थक इज अ वेरी गुड सिंगर, है कि नहीं? उसने इतने मेहनत से अपने गले को रिफाइन किया है, तो उसका जो बच्चा है वो जब रोएगा तो भी वो सुर में रोएगा. क्यों? क्योंकि उसके पापा ने उसको वो दे दिया. अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. नाउ चार्ल्स डार्विन gave the famous theory of pangenesis. According to this theory of Darwin, each part of the animal body produces, so Darwin was God by that time, each part of the animal body produces minute particles known as gamules. Okay, known as gamules. Gamules. Okay, these gamules are at first collected in the blood and later on they are concentrated in the reproductive organs. When the animal reproduces into a new individual, these gamules pass on to it and it has blending of both parents. समझ रहे हो? So this is called the theory of pangenesis. मतलब हर पार्ट से कुछ ना कुछ गेम्यूल्स मिलते थे एंड वो जो गेम्यूल्स है ओके उसको हम आगे ट्रांसमिट करते थे. सर, हाँ बोलो. सर ये जितनी सारी थ्योरीज थी तो इन सब के थ्योरीज के पीछे कुछ मतलब इनको कोई रिजल्ट या कुछ ऐसा पार्टिकल मिला था जैसे गेम्यूल्स इनको मिला, सुनो, तो ऐसा कुछ मिला था या सिर्फ ऐसे ही हवाई सुनो, अभी हवाई कुछ तो कोई छोड़ नहीं सकता ना. अभी आपको ये हवाई क्यों लगता है? बिकॉज अभी आपको उन्होंने सी दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू ना कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री.
अभी जैसे तुम लोग को लग रहा है दूर साला ये जो वाइल्ड मैन है वो कच्चा खाते थे कदे कहीं के, गैस से उबाल के नहीं खा सकते थे मसाला वसाला डाल के। अरे गैस तो उन्हीं ने डिस्कवर किया, आग तो उन्हीं ने डिस्कवर किया। तो तुम अपने आप को जब तक उनके जूतों में नहीं डालोगे तब तक वो गधे लगेंगे, तुमको आदि मानव लगेंगे। बट you know why these games have been started या Bear Grylls activity has been started? So that is started कि एक इंसान जिसके पास कुछ नहीं था, How Naked and Afraid जो आजकल सीरियल चल रहा है, तो वो जंगल में कैसे रहते थे पहले के इंसान, है कि नहीं? तो इसलिए तुम घर बैठ के उनको बेवकूफ बोल सकते हो, ओके, बट उस जमाने का सिचुएशन अलग था। तो ये जो गेम्यूल्स वाला थ्योरी है वो स्पॉन्जेस में जैसे गेम्यूल्स निकल रहा है तो उनको भी लगा कि वैसे ही कुछ गेम्यूल्स इधर भी होगा, क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट दे डिड नॉट सी एनीथिंग, क्योंकि तब देखना मुमकिन नहीं था, माइक्रोस्कोपी था नहीं। तो इसीलिए जैसे जैसे हमारा विजन बढ़ा वैसे वैसे क्लैरिटी बढ़ा। अभी भी कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम जानते हैं वो सही है। So that is what is science. साइंस का मतलब है टिल डेट वो सही है, बट ऐसा हो सकता है कल वो गलत साबित हो जाए, है कि नहीं? आजकल हमारे पास जितना डाटा है उसके अनुसार ये सही है। अंडरस्टूड ना? तुम खुद सोचो, अगर इन्होंने ये बकवास नहीं किया होता तो मेंडल ये बकवास करते, है कि नहीं? तो इसीलिए देख रोड बुक्स। डू यू थिंक डार्विन वाज एन इडियट या डू यू थिंक लामार्क वाज एन इडियट? सो एवरीबडी हैड हिज और हर ओन फोटे, बट तो इसलिए लोग जैसे नजरिया जिसको हम कहते हैं नजरिया, तो हर एक का अपना नजरिया होता है दुनिया को देखने का। तो दो डार्विन वाज वेरी फेमस दैट टाइम क्योंकि ही गेव द ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी, तो तब उनको एक भगवान का सिचुएशन मिल गया। तो जब लोगों ने उनको भगवान की तरह ट्रीट करने लगे तो जो वो बोले उसको मानने लगे, है कि नहीं? वो सही है या नहीं सही है वो पता नहीं। लाइक पंडित रविशंकर जैसे अभी हैं, ही इज सच ए ऑनरेबल मैन, तो उनके बहुत अच्छाइयां हैं, तो इसलिए हम जो भी वो बोलते हैं हम उसको सही मानते हैं। इवन इफ यू रिमेम्बर ये जो पाकिस्तान में जो एक मुल्ला है, तो वो क्या है, ही इज वेरी फेमस मुल्ला, तो इसलिए अब उनको पूछे भाई क्यों कोरोना आ गया, तो बोले हमारे जो लड़कियों में बेहयाई आ गई, जो लड़कों में बेहयाई आ गई, नंगे कपड़े पहन के घूमते हैं इसलिए कोरोना आ गया। तो अब जो ये जो मजलिस वाले लोग वही मानेंगे, है कि नहीं? एंड सो ऑन। तो इसीलिए हर कोई हर चीज में जीनियस नहीं होता, बट अगर कोई किसी चीज में जीनियस होता है तो लोग उसके बातों को मानने लग जाते हैं। But that is the concept, okay? उन्होंने कुछ तो देखा है ना, नहीं तो अभी ये सब थोड़ी बोल देते। They have written books on it. This theory of pangenesis is a book of Darwin, है कि नहीं? तो वो ऐसे बैठे बैठे थोड़ी लिख दिए, उन्होंने कुछ बुक्स बनाया उसको। तो ये हमारा पास्ट है मेंडल का। तो ये सारे चीज मेंडल देख रहे थे। उसके बाद ऑगस्ट वीजमैन, ओके, तो द थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस वाज डिस्प्रूव्ड बाय गैल्टन एंड वीजमैन। तो वीजमैन ने क्या कहा, ओके, इन अगस्त 1892 वीजमैन प्रपोज्ड द जर्म प्लाज्म थ्योरी टू एक्सप्लेन हेरिडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा कि सोमैटोप्लाज्म अगर ट्रांसफर करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ओके, according to this theory the body is made up of two types of cells, somatic and reproductive. The somatic cells form the body and the different organs, while the reproductive cell form the sperm and egg. Change in the somatoplasm does not affect the further generations, but
A change in the germplasm affects the progeny. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था. ओके, इसको कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म थ्योरी कहते हैं. मतलब सपोज अभी जो तुम आद्या सिंह जो गोरी हो गई है वो एकदम काली सी थी. ओके, ये जो फेशियल करा करा के ब्यूटी पार्लर जा जाके गोरी हो गई है, तो उसका बच्चा किस रंग का होगा? काला. काला होगा, क्योंकि आपका सोमैटोप्लाज्म बच्चे को जाने वाला नहीं है. यस, अगर किसी म्यूटेशन से जो कि आपके एग में हुआ है